हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग जो है लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 6 की जो साइंस बुक थी न्यू अप्रोच टू साइंस, उसके 5th चैप्टर के पार्ट 1 को किया था। चैप्टर का नाम था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, वो चैप्टर का नाम था। उसके पार्ट 1 को हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग उसके पार्ट 2 को करेंगे कि सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, मिक्सचर के सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, है ना। कुछ सॉलिड पार्टिकल अगर लिक्विड में मिले हुए हैं, मिलकर उन्होंने एक मिक्सचर बनाया है, तो हम कैसे कुछ सॉलिड्स को लिक्विड से अलग कर सकें। अब सॉलिड्स की टेंडेंसी अलग अलग है। कुछ सॉलिड होते हैं जो कि लिक्विड में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, जिनको हम कहेंगे सॉल्यूबल इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, आप नमक को पानी में मिलाएंगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा, तो हम कहेंगे सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्ट इज अ सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड। पर कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड जो कि पार्शियली सॉल्यूबल होते हैं या ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल होते हैं। जैसे कि क्या है, पेपर पाउडर इन वाटर, है ना, काली मिर्च का पाउडर। उसे अगर आप पानी में मिलाएंगे तो वो पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं होगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग को पानी में दिखाई देंगे या वो थोड़ा सा नीचे सेटल्ड रहेगा, ठीक है। तो कुछ सॉलिड्स कम्प्लीटली सॉल्यूबल है, कुछ सॉलिड्स पार्शियली सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन लिक्विड्स है, ठीक है। अब है कि बहुत सारे अलग अलग टेक्निक करते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करेंगे इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, है ना। ऐसे सॉलिड जो कि पानी में मिल नहीं पा रहे हैं, उनको हम लोग पानी में या किसी भी लिक्विड में जो सॉलिड मिल नहीं पा रहे हैं उनको हम लोग सेपरेट करेंगे। कैसे? सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब इसमें जो है अलग अलग टेक्निक है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग और फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन एक टेक्निक है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक साथ जाता है, लोडिंग एक है और एक फिल्ट्रेशन है। तो चलिए हम लोग बुक में रीड करते हैं कि सेडिमेंटेशन के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, ओके। Insoluble solids are separated from liquids by using the following methods: sedimentation, decantation, loading and filtration. The change of state from solid to vapor is called sublimation, and from vapor to solid without coming to a liquid state is called deposition. Now we go to sedimentation and decantation. Sedimentation is a method of separating two components in such a way that the heavier substances settles down. Mix some mud with water, leave the water in the container undisturbed for a while. After some time, the mud will settle down at the bottom of the container due to gravity. These particles of mud are known as sediments, and the process is termed as sedimentation. Now the clear water is obtained by pouring it into another content without disturbing the sediment. The liquid above the sediment is called supernatant. This process of obtaining liquid from the insoluble solid is known as decantation. The process of decantation is also used in our everyday life. When rice and pulses are washed with water before cooking, then water is separated from them by decantation. This method can also be used for separating two liquids that do not mix with each other. Example, oil and water. If mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The lighter component that forms the top layer can be separated by decantation. When it rains, all the dust and smoke, mainly carbon particles, are suspended in air, settle down on the earth, making the sky very clear. This happens because the raindrop attaches itself to the dust particles, making it heavier, and so it settles down due to the gravity. This method of separating the suspended particles from gas or liquid by making them heavier is known as loading. Loading is the process in which alum particles are deposited on the suspended clay particles of muddy water to make them heavy and settle down rapidly. At water treatment works, river water or lake water is filtered using sand filters.
अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन के बारे में। उसके पहले आपकी बुक में 2 टर्म्स और बताया है, एक है सब्लिमेशन और एक है डिपोजिशन। ठीक है, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। मान लीजिए जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कपूर होता है ना, जिसे आरती में यूज़ करते हैं, पूजा के सामान में यूज़ करते हैं। तो कपूर को जो है एक सॉलिड पीस होता है ना, सॉलिड स्क्वायर पीसेस होता है, क्यूब्स होता है। उसे अगर हम लोग जलाते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है ना, गैस में चेंज हो जाता है। जबकि क्या होना चाहिए, सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे वो मेल्ट होकर पहले लिक्विड होना चाहिए, फिर लिक्विड के बाद वेपर होना चाहिए। पर कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कपूर या कैम्फर, हाँ उसे कपूर या कैम्फर कहेंगे, जो कि हीट करने पे लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं और डायरेक्टली वेपर स्टेट में चले जाते हैं, गैस बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अब इसका उल्टा क्या होगा, डिपोजिशन होगा। अगर कोई वेपर है या गैस है, उसे हम लोग कूल कर रहे हैं, है ना, कैम्पर को क्या कर रहे थे, हम लोग हीट कर रहे थे तो वो गैस फॉर्म में चेंज हो जा रहा था। ठीक है, अब कोई गैस है उसे हम कूल कर रहे हैं मान लीजिए, और कूल करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में नहीं आके सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाए अगर, ठीक है, सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उसे हम कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, उसे डिपोजिशन कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल कहेंगे तो अभी तो आप लोग के लिए समझना ठीक नहीं होगा, पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको कुछ सर्टेन कंडीशंस में जब हम लोग कूल करेंगे, कुछ कंडीशंस होगा वैसा, तब वो डायरेक्टली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, ये पर इसके लिए सर्टेन कंडीशंस अप्लाइड होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में हमने पानी रखा है और पानी में हमने मिट्टी घुला के रखा है। ठीक है, मिट्टी का एक पूरा बड़ा सा लंप है, वह पानी में घुला हुआ है। ठीक है, पर हम लोग जानते हैं कि मिट्टी या क्ले जो है वो हैवी है ना, तो जो हैवी है वो हैवी पार्टिकल वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे सेटल होना शुरू कर देगा, है ना, बॉटम में जमा हो जाएगा क्ले पार्टिकल। पहले तो थोड़ी देर पानी में रहेगा, फिर धीरे धीरे करके बॉटम में जमा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लास को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, है ना, उसे हिलाना डुलाना नहीं करेंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हमने उस ग्लास को अनडिस्टर्ब छोड़ा तो ये जो क्ले था वो पूरा नीचे यहाँ पे सेटल कर गया है। क्ले का एक बड़ा जो लंप था वो नीचे सेटल कर गया है। इसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट, है ना, जो नीचे सेटल कर जाए उसे सेडिमेंट। और ऊपर जो है, पहले तो वो मडी वाटर था, अब क्लियर वाटर ऊपर रह गया। तो जो क्लियर वाटर ऊपर रह गया वो क्या कहलाया, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट उसे कहते हैं, जो क्लियर वाटर ऊपर रह गया। ठीक है, अब हम लोग उस क्लियर वाटर रह तो गया, हम लोगों ने उससे इम्प्योरिटी को अलग तो कर दिया, नीचे सेटल करा दिया हमने इम्प्योरिटी को, पर है कि हमें अभी भी क्लियर वाटर नहीं मिला है से अलग से, है ना, वो अभी भी उसी सेडिमेंट के साथ ही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है कि अनडिस्टर्ब्ड हमने छोड़ा इसे और इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल कर गए। जब हैवियर इम्प्योरिटीज़ होंगे तभी ऐसा होगा कि इम्प्योरिटी हैवी होंगे, तब जाके होगा। तो ये प्रोसेस हुआ सेडिमेंटेशन। ठीक है, कि सेडिमेंट्स नीचे सेटल कर गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्लियर वाटर है ना, उसे हम लोग धीरे धीरे करके दूसरे एक ग्लास में डाल देंगे। ठीक है, ये क्लियर वाटर को धीरे धीरे हम लोग दूसरे ग्लास पे डाल देंगे, तो हमें यहाँ पे क्लियर वाटर, क्लीन वाटर मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम इसे डाल देंगे तो क्लीन वाटर मिल जाएगा। तो ये कहला देगा डिकेंटेशन। ठीक है, हम उसे पोर कर देंगे, पोर इट स्लोली।
तो हमें जो क्लियर वाटर मिलेगा वो कहलाएगा डिकैंटेशन। यानी कि सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन दोनों ही प्रोसेस सेम टाइम पे चलेगा, ठीक है। मतलब सेडिमेंटेशन के बाद डिकैंटेशन आएगा। जैसे आपके घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब राइस को हम लोग धोते हैं, है ना, चावल को धोएंगे हम लोग, तो क्या करते हैं, चावल को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया पानी में, हाथ से उसे थोड़ा रगड़ भी दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे उस बर्तन को उठा के, यूटेंसिल को उठा के, उसके पानी को हम लोग नीचे पोर कर देते हैं, है ना, पानी को नीचे गिरा देते हैं और राइस वहीं रह जाता है। तो ये भी हुआ क्या, पहले स्टेप में सेडिमेंटेशन हुआ, दूसरे स्टेप में डिकैंटेशन। इसी तरह पल्सेस के साथ भी करते हैं, दाल वगैरह भी धोना हो तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन जो है हमारे डेली लाइफ में काम आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, वो है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, देखिए हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट है ना, डस्ट के पार्टिकल्स है और कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में सब घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब बारिश होती है तो जो है रेन वाटर के साथ वो सारे पार्टिकल्स नीचे चले आते हैं, ठीक है। रेन वाटर के साथ वो सारे पार्टिकल्स चिपक के और थोड़े हैवी हो जाते हैं और उन्हें जो है अर्थ की ग्रेविटी नीचे खींच लेती है, तो वो सब नीचे गिर जाते हैं और हमारा एयर पूरा क्लीन हो जाता है। तो इसे हम लोडिंग कहेंगे, ठीक है। आप बच्चों सोचिए कि लोडिंग का आपने कोई एग्जाम्पल अपने घरों में देखा है या अपने आसपास। तो ये जो प्रोसेस है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, चाहे गैस में हो या लिक्विड में हो, हाँ, उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर देंगे बाय मेकिंग देम हैवी, है ना, उनको हैवी करके हम उनको सेपरेट करेंगे गैस या लिक्विड से, ये लोडिंग कहलाएगा। गैस से क्या कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा स्काई और एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है जब रेन होता है, बारिश होती है, क्योंकि वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अपने साथ पकड़ के उसे हैवी करके नीचे अर्थ पे गिरा देता है। ये तो हुआ गैस के साथ लोडिंग प्रोसेस। अब लिक्विड के साथ देखेंगे, कई बार हम लोग जब पानी लाते हैं, पीने का पानी हैंडपम्प वगैरह से, तो थोड़ा कई बार जो है थोड़ा मडी सा दिखता है, ठीक है, कोई जगह का। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक एलम का पीस डाल देते हैं। एलम क्या होता है, उसे हिंदी में फिटकरी कहते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा वाइट कलर का पत्थर होता है, एक तरह का केमिकल है, कंपाउंड है, वो एक पत्थर होता है वाइट कलर का, फिटकरी या एलम कहेंगे। उसे हम पानी में धीरे धीरे करके ऐसे थोड़ा हिला देते हैं और उसे पानी में ही छोड़ देते हैं। तो जब हम उसे पानी में हिलाते हैं तो जो है सारे जो मड पार्टिकल्स है पानी में, वो सब उससे अटैच हो जाते हैं, एलम के साथ आके चिपक जाते हैं और थोड़े हैवी हो जाते हैं एलम के साथ, और धीरे धीरे जाके नीचे सेटल होने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सेटल हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी अगर वाटर को हमको क्लियर करना है तो हम एलम पीस को यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लोग लिक्विड को क्लीन कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो आपने समझ लिया सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन पर समझ लिया, लोडिंग समझ लिया। अब हम लोग फिल्ट्रेशन पे आते हैं। फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Tea is filtered before drinking. This is done using a strainer which is fitted with a wire mesh. The tea leaves are left behind on the strainer and the liquid passes through it into a cup or a container. This process of separating insoluble substances from a liquid is called filtration. Fruits and vegetables are also filtered to separate the seeds and solid particles of pulp. Filtration can also be used to prepare cottage cheese, paneer in our homes. It is prepared by adding a few drops of lemon juice to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. Liquid passes through the cold cloth whereas paneer is left on the cloth. अब हम लोग के पास जो लास्ट स्टेप रह गया वो है क्या, वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड है, हाँ, इनसॉल्युबल सॉलिड जो है, जो कि लिक्विड में मिला हुआ है, इनसॉल्युबल है पर इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड इज फिल्टर्ड ऑफ, है ना। फॉर एग्जाम्पल टी लीव्स फ्रॉम टी, है ना। चाय की पत्ती को जब हम लोग चाय बनाते हैं
उसके बाद चाय का जो स्ट्रेनर होता है, चाय की जो छन्नी होती है इस टाइप का रहता है ना, ऐसे एक हैंडल के साथ रहता है, ऐसे करके रहता है। और इसमें क्या होता है, वायर मैश लगा रहता है। वायर मैश का मतलब है कि तार की जाली बनी रहती है ना, तार की जाली बनी रहती है। तो जब हम लोग इससे चाय को पास करते हैं इस तार की जाली से, तो क्या होता है, नीचे हमें जो है प्योर टी मिल जाता है ना, यहाँ हमें टी मिल जाता है। और यहाँ पे क्या रह जाता है, यहाँ पे कुछ जो रह जाएगा वो क्या होगा, टी लीव्स। टी लीव्स जो है ऊपर रह जाएगा, रेसिड्यू ऊपर रह जाएगा और नीचे हमें क्लियर टी मिल जाएगा विदाउट टी लीव्स। ठीक है, तो इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है जो भी रिवर्स में आप बोलेंगे कि कई बार होता है बहती नदी के पानी को लोग अच्छा मानते हैं और बहती नदी के पानी को कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो नदी बहती रहती है, हमेशा उसमें फ्रेश वाटर आ रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो हो नहीं रहे हैं। सेकेंडली नदी पत्थरों के ऊपर से पास होके आती है, ग्रेवल्स और ये सब के ऊपर से, सैंड के ऊपर से पास होके आती है नदी। तो जो है सैंड जो है वो भी फिल्टर का काम करता है। जब बालू के एक मोटे ढेर के ऊपर पानी बहकर उसके नीचे से होके पास करता है तो क्या होता है कि बालू में पानी के जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वहीं अटक अटक के रह जाते हैं और क्लियर पानी बहकर बाहर चला आता है। ठीक है, तो इस तरह फिल्ट्रेशन टेक्निक होता है। लैब में आपने देखा है फिल्ट्रेशन, लैब में ऐसे एक कोन, हाँ कोन जैसा होता है, जैसे कि क्या कहते हैं हम लोग, फनल कहते हैं, फनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बीकर रहता है। ठीक है, इस फनल को तो एक स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, और इस फनल के भीतर क्या लगाते हैं, एक फिल्टर पेपर लगाया जाता है। ठीक है, तो जब इसमें से हम किसी, मान लीजिए चॉक पाउडर को हम पास कर रहे हैं, इसमें एक फ़िल्टर पेपर हम लोग फोल्ड करके लगा दिए, और जब इसमें से हम चॉक पाउडर को पास कर रहे हैं, वाटर प्लस चॉक पाउडर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ वाटर मिलेगा, क्लियर वाटर, और चॉक पाउडर यहाँ पे फिल्टर पेपर में जमकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये कांच का बना रहता है, इसे फनल कहते हैं। कांच का जो होता है जिसे हिंदी में कुप्पी कहेंगे, और ये नीचे वाला क्या होता है, ये बीकर होता है और यहाँ पे स्टैंड रहता है। ठीक है, ऐसा केमिस्ट्री लैब में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से कैसे सेपरेट करना है उसके 4 टेक्निक्स को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से कैसे सेपरेट करना है। ये सब तो इनसॉल्युबल थे, जो पानी में घुल नहीं रहे थे, इन्हें हम सेपरेट करते। अब जो पानी में घुल चुके हैं और हम उन्हें अलग करना चाहते हैं लिक्विड से, तब कैसे करेंगे, पढ़ते हैं आगे। Soluble solid from its solution. 2 methods are very common in separating soluble solid from its solution. They are evaporation and distillation. Evaporation. This method is used to obtain soluble solid from its solution. The process of evaporation may be used to separate dissolved material from the solvent. The most common example is of obtaining salt from seawater. Seawater contains several salts, mainly table salt or common salt dissolved in water. Seawater is allowed to stand in shallow pits. Water slowly evaporates by sunlight, leaving behind white crystals of salt which are purified to obtain table salt. Distillation. Distillation is the process by which a soluble solid is separated from the liquid by heating the solution and condensing the vapors using cooling tube. This method is mainly used where the solid and the liquid both have to be collected from its solution. Separation of mixtures by using more than one method. We have studied about the methods of separating mixtures into their components. Some mixtures can be separated by a single method. On the other hand, many mixtures can only be separated by a combination of methods of separation. Separation of salt and sand mixture. A mixture of table salt, fine sand, 2 beakers, funnel, filter paper, stand and water. Mix equal volumes of salt and sand in a beaker. Add water to the mixture and stir for some time. Salt will dissolve completely
leaving behind the sand. Place a funnel in a beaker. Fold a circle of filter paper into quarters and open it into a funnel shape. Place the filter paper into the funnel. Pour the mixture into the funnel slowly. This will filter out the sand, leaving it behind on the filter paper. After filtering, pour the filtrate into a kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. We will notice that steam comes out from the spout of kettle. Now take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of kettle. When the steam comes in contact with metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. This process is called condensation. In the above activity, we have the solid residue left behind in the kettle is salt. In the above activity, we have separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाएंगी, मैं बताती हूँ। सेपरेटिंग soluble solids from its solution. देखिए हमारे पास है, मान लीजिए सॉल्ट है, वाटर है और वो दोनों को हमने मिक्स कर दिया है और हमें सॉल्टी वाटर मिल रहा है। तो ऐसे केस में जो हम कम अमाउंट में डाल रहे हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, जो ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्ट सॉल्यूट है और सॉल्टी वाटर क्या है, सॉल्टी वाटर है सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जो है सॉल्युबल सॉलिड को, अब नमक तो पूरी तरह से घुल गया है पानी में, सॉल्युबल हो गया है, उसे हम उसके सॉल्यूशन से अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये मेनली 2 प्रोसेसेस से किया जाता है। एक है इवापोरेशन और दूसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। इवापोरेशन में हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्यूशन को इवापोरेट करेंगे, सॉल्यूशन को हम हीट करते रहेंगे, गर्मी देते रहेंगे और सॉल्यूशन जो है धीरे धीरे बॉयल होगा, मतलब पूरा गर्म होगा, बॉयल होने लगेगा। उसके बाद उसका जो उसमें लिक्विड पार्ट है वो गैस बन के ऊपर वेपर बन के निकल जाएगा और सॉलिड पार्ट हमें अलग मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग सी वाटर देखते हैं, सी का वाटर जो है समुद्र का पानी होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिले हुए रहते हैं ना, इसलिए वो नमकीन टेस्ट का होता है। अब हम लोग सी वाटर से नमक कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो क्या करते हैं, समुद्र के पास है ना, ऐसे ऐसे हमारे पास समुद्र है, जहाँ समुद्र के पास जो है बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं या फिर स्क्वायर शेप का थोड़ा बनाया जाता है, हल्का क्यूबॉइड जैसा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उस पानी को रख देते हैं, सी वाटर को यहाँ पे रख देते हैं। वो सूर्य की रोशनी से, हाँ ऊपर जो है सन की रोशनी से धीरे धीरे जो है ये सी वाटर इवापोरेट होने लगेगा। ठीक है, ये पानी इवापोरेट होने लगेगा। जब ये पानी इवापोरेट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मास मिलेगा। क्या होगा, वो जो सिर्फ रह जाएगा वो होगा नमक। ठीक है, पानी तो इवापोरेट हो गया, यानी सॉल्वेंट इवापोरेट हो गया और सॉल्यूट रह गया जो कि नमक था। इसी नमक को फिर हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और उसको हम लोग अपने घरों में एज अ टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इवापोरेशन प्रोसेस। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस पे जाते हैं। इवापोरेशन में हमने क्या किया, लिक्विड को तो हमने इवापोरेट कर दिया क्योंकि हमें उस पानी की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो सॉल्ट से मतलब था। पर डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या है कि हमें मान लीजिए दोनों चीज़ें चाहिए, पानी भी चाहिए और वो जो है नमक भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। हाँ, वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आपके पास जो है एक पॉट है मान लीजिए, ठीक है, इसे हम लोग जो है हीट
कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉट में मान लीजिए हमारे पास है वही मान लीजिए सॉल्टी वाटर ही है, हमको वाटर और सॉल्ट दोनों चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए। हम उसको पास कर रहे हैं। यहाँ पे कूलिंग ट्यूब्स लगा हुआ है, ठीक है, या कंडेंसर हम बोलेंगे जो, वो लगा हुआ है। और यहाँ ये जाके यहाँ पे आइस रखा हुआ है। ये एक्चुअली ये कूलिंग ट्यूब्स के भीतर ही आइस के पीसेस रखे हुए हैं, आइस है। ऑल्दो बहुत ही टेक्निक से यूज़ किया था, मैं आपको ये रफली बता रही हूँ। हमने इस पानी को गर्म किया क्लोज कंटेनर में, बंद कंटेनर में। तो क्या हुआ, पानी का पहले ये जो नमकीन पानी था उसके पानी जो है वाटर पार्ट है वो इवापोरेट हो गया। इवापोरेट होके वेपर बन के वो यहाँ से पास हो रहा है। जब वो वेपर बन के यहाँ से पास हो रहा है तब यहाँ पे कूलिंग ट्यूब्स लगे हुए हैं या कंडेंसर लगे हुए हैं। कंडेंसर क्या होता है, जो कि लिक्विड को मतलब वेपर को लिक्विड में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कूलिंग ट्यूब्स लगे हैं, आइस है, ठंडा, यहाँ पे उसको एक कूलिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो ये पानी जो है, जो कि वेपर बन के जा रहा था, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगा, वापस अपने पानी फॉर्म में चेंज होने लगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी यहाँ पे वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये प्योर वाटर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्योर वाटर तो मिल गया। और यहाँ पे जब सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा तो हम लोग को क्या नीचे मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। यानी एक क्लोज कंटेनर में आप इवापोरेट करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को, सॉल्वेंट इवापोरेट हो जाएगा, फिर उसे ठंडा करके हम वापस उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, पानी के फॉर्म में हम उसे ले लेंगे और नमक जो सॉल्यूट है वो वहीं रह जाएगा। तो आपने देखा ना कैसे हम दो प्रोडक्ट्स दोनों ही हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। अब है कि ये तो हम लोगों ने दो प्रोसेस से सॉल्युबल सॉलिड को निकाल लिया। अब कई बार होता है separation of mixtures by using more than one method. Separation of mixtures by using more than one method. एक से ज़्यादा मेथड्स कई बार हमको लगानी पड़ेंगी ताकि हमको वो मिक्सचर सेपरेट कर सके। अब फिर से देखिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। हमारे पास एक बीकर है, इसमें क्या है, सैंड है प्लस वाटर है प्लस सॉल्ट है। ये तीनों ही चीज़ें हमने इसमें डाली है। पानी डाला है, पानी में नमक घुला हुआ है और नीचे यहाँ पे सैंड है, बालू है, ठीक है। अब हमको जो है सैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। तो तीनों आइटम्स पाने के लिए हमको 3 अलग अलग प्रोसेस करना होगा। पहला प्रोसेस हमें क्या करना होगा, पहला प्रोसेस हमें करना होगा इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन करना होगा, ठीक है। हम एक केटल लेंगे, ये केटल में एक स्पाउट बना हुआ होगा, है ना, केटल में एक स्पाउट बना हुआ रहता है ना, इस तरह का, ऐसा, ठीक है। ये हम केटल लेंगे और इसको हम नीचे से हीट करेंगे, ठीक है। कैंडल से हीट नहीं करते हैं, बंसन बर्नर जो होता है एक लैब में, उससे हीट करते हैं, ठीक है। तो हम इसे हीट करेंगे, यहाँ पे पानी है, नमक है और सैंड भी है, ठीक है। हम इसे हीट कर रहे हैं। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो पानी इवापोरेट हो जा रहा है ना। अच्छा, इसके पहले हम लोग को ये इवापोरेशन के पहले हम लोग को एक दूसरा स्टेप करना है। इवापोरेशन सेकंड स्टेप होगा, ठीक है। इवापोरेशन बी स्टेप होगा। उसके पहले हम लोग ए स्टेप करेंगे, वो है फिल्ट्रेशन।
ठीक है, हमने एक ये फ़िल्टर पेपर का एक कोन बनाया, उसे हमने किसके भीतर रखा है, उसे हम जो है फ़नल के भीतर रखेंगे। फ़िल्टर पेपर का एक कोन बना के हम फ़नल के भीतर रखेंगे, ये कोन ऑफ फ़िल्टर पेपर। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे वो बीकर का सॉल्ट प्लस सैंड प्लस वाटर। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िल्टर होके हमें जो है नीचे ठीक है, फ़िल्टर होके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो सैंड है वो यहीं पे डिपॉजिट होके रह जाएगा। ठीक है, सैंड यहीं पे रह जाएगा क्योंकि वो इनसॉल्युबल इन वाटर था। सैंड हमको इसी फ़िल्टर पेपर में मिल जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नीचे वाटर प्लस सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है फिल्ट्रेशन जो है वहाँ पे हमें सैंड मिल गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में जाएंगे, इवापोरेशन में। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो हम जाएंगे इवापोरेशन में, अब हम किसको इवापोरेट कर रहे हैं, अब सैंड तो अलग हो चुका है जो हमें फ़िल्टर पेपर में मिल गया है, अब हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर को इवापोरेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने बंद कर दिया है, क्लोज्ड लिड। ठीक है, लिड से हमने इसे बंद कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जब ये इवापोरेट होने लगेगा, ठीक है, जब ये इवापोरेट होने लगेगा तो इससे जो है वेपर्स निकलने लगेंगे। ठीक है, वाटर वेपर निकलने लगेगा बाहर। जब वो ये वाटर वेपर निकलने लगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैन लाएंगे, जिस पैन में क्या होगा, आइस क्यूब्स होंगे, आइस क्यूब्स। ठीक है, अब जो है ये वाटर वेपर निकल के इससे टकराएगा। ठीक है, इस पैन से जब टकराएगा तो आइस क्यूब वो वाटर वेपर को पूरा ठंडा कर देंगे। हाँ, वाटर वेपर कूल हो जाएगा, कंडेंसेशन यहाँ पे हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस जो कहते हैं, कूल हो जाएगा वाटर वेपर और नीचे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी कलेक्ट होने लगेगा, वाटर कलेक्ट होने लगेगा। ठीक है, तो देखिए जब ये इवापोरेट हो रहा था यहाँ पे सॉल्ट रह गया। फर्स्ट स्टेप में हमें सैंड मिल गया फ़िल्टर पेपर में, सेकेंड स्टेप में हमें सॉल्ट मिल जाएगा जब सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, और थर्ड स्टेप जो है ये फिल्ट्रेशन हुआ, ये इवापोरेशन हुआ, और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था यहाँ पे, ये डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन हुआ, इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन के साथ ही डिस्टिलेशन हुआ और हमें क्लियर वाटर मिल गया। यानी मिक्सचर में जो तीन कंपोनेंट्स थे, तीनों को हमने सेपरेट किया बाय मोर देन वन मेथड्स। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सम लिक्विड्स आर soluble in water while some are not soluble in water. Those liquids which are soluble in water are known as miscible liquids. For example, lime juice, vinegar. Those liquids which are not soluble in water are known as immiscible liquids. Example, oil, petrol. Since they do not mix, they form layer with the heavy liquid below and lighter liquid above. For example, oil floats on water as it is lighter than water. So oil can be separated from water by decanting water into another container with the help of a separating funnel. Solubility and solution. Dissolving is a change where substances mix completely with the liquid they have been added to. If a solid dissolves in a liquid, we say that it is soluble. Such a liquid in which a solid dissolves is called a solvent and the solid is called a solute. So if salt is dissolved in water, the water is solvent and the salt is the solute. When a solute and solvent are completely mixed, they form solution. There are many different solvents and many different solute. For example, salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. A solution in which no more soluble substances can be dissolved at room temperature or at a given temperature is called saturated solution. If the temperature of the saturated solution is raised, it is able to dissolve more solute until it becomes saturated at the new temperature. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे separating liquids from liquids.
सेपरेटिंग लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, दो लिक्विड आइटम को हमने मिलाया है। एग्जाम्पल, अगर हम लाइम जूस प्लस वाटर करें या फिर हम विनेगर प्लस वाटर करें तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही क्या होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व्स, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, हमें और दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे लिक्विड्स जो है जो एक दूसरे से एक साथ पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं वो मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। हाँ, वो मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। अब कुछ लिक्विड्स हैं जो कि डिजॉल्व नहीं हो सकते, जैसे पेट्रोल प्लस वाटर हम करें, ठीक है, या सिंपल ऑयल प्लस वाटर करें तो ये क्या होगा, lighter liquid floats on top of heavier liquids। Oil floats on water। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स क्या कहलाएंगे, इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स कहलाएंगे। ठीक है, जो दो लिक्विड आसानी से एक दूसरे के साथ डिजॉल्व हो गए तो मिसिबल लिक्विड, जो आसानी से एक दूसरे के साथ नहीं डिजॉल्व हो पाए वो इमिसिबल लिक्विड कहलाएंगे। जैसे पेट्रोल को पानी के ऊपर डाला तो पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल वेट में हल्का है, पानी वेट में ज़्यादा है। इसी तरह कोई भी तेल को अगर पानी के ऊपर हम डालेंगे तो तेल ऊपर तैरता रहेगा, क्योंकि तेल हल्का है और पानी भारी है। अब है कि ये जो दो इमिसिबल लिक्विड है, जो दोनों एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, उनको भी सेपरेट किया जा सकता है। थोड़ा मुश्किल लगता है जान करना कि लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, पर हाँ, लिक्विड को भी सेपरेट किया जा सकता है। केमिस्ट्री लैब में एक होता है सेपरेटिंग फनल होता है। देखिए, सिंपल फनल मैंने आपको पहले बताया जो फिल्ट्रेशन के लिए होता है, वो एक अलग है और एक सेपरेटिंग फनल अलग है। उसमें ये जो इमिसिबल लिक्विड है उनको हम पूरा शेक करके उसमें मिला देते हैं और वो फनल को भी काफ़ी देर तक शेक करते रहते हैं, तो हमको दो लेयर मिल जाता है। ऊपर पूरा एक मोटा लेयर एक हल्के वाले लिक्विड का, नीचे हैवी वाले लिक्विड का, और उसमें सेपरेट करने का भी बीच में एक बना रहता है, एक सर्कुलर सेपरेशन बना रहता है। वहाँ से हम उसको थोड़ा लूज़ करके और ऊपर वाले लिक्विड को हम अलग जगह रख लेते हैं और नीचे वाले लिक्विड को अलग जगह रख सकते हैं। तो सेपरेटिंग फनल, हाँ, किसकी मदद से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेटिंग फनल उसका नाम है। आपके बुक में वो फोटोग्राफ भी दिया हुआ है सेपरेटिंग फनल का। उसकी मदद से हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। अब मैंने आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया है ना, कि जो भी सॉलिड या लिक्विड पूरी तरह से, सॉलिड खासकर, दूसरे लिक्विड में आसानी से मिक्स हो जाए, जो सॉलिड जो कम अमाउंट में हम डालें, जैसे नमक को हमने पानी में डाला तो नमक आसानी से मिक्स हो जा रहा है। नमक है सॉल्यूट, पानी है सॉल्वेंट, और दोनों मिलके जो नमकीन पानी बना वो नमकीन पानी क्या है, सॉल्यूशन है। जब कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा तो एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम लोग अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहें, ठीक है, सॉल्यूशन के हम लोग अगर कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिजॉल्व्स, दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व कर जाएंगे तो सॉल्यूशन बनता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसका तो सॉल्ट इन वाटर, या फिर शुगर इन वाटर, या फिर और एक होता है कॉपर सल्फेट, है ना, ब्लू कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट इन वाटर, वो भी पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और सोल्यूशन बनाता है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाता है, तो कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो ये तीन तरह के एग्जाम्पल्स है किसके, सोल्यूशन के। अब है
मान लीजिए हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, हमने एक बीकर लिया है। इस बीकर में क्या हमने डाला है, इसमें क्या डाला है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच की मदद से इसमें कॉपर सल्फेट डालते ही जाएंगे। ठीक है, एक चम्मच की मदद से, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, उसे हम डालते ही जाएंगे और इसे एक ग्लास रॉड होता है, लैब में कांच का एक रॉड होता है, ठीक है, ग्लास रॉड, उसकी मदद से इसे स्टीर करते जाएंगे। स्टीर करना मतलब इसे हम मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, तो हम कॉपर सल्फेट डाले और ग्लास रॉड की मदद से उसे हमने स्टीर किया, उसे मिक्स कर दिया, तो पूरा कॉपर सल्फेट मिक्स हो गया पानी में। फिर पूरा अच्छे सोल्यूशन दिखने लगा, कॉपर सल्फेट अलग से कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का सोल्यूशन दिख रहा है। फिर हम चम्मच से और कॉपर सल्फेट डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, मिक्स हो गया, फिर डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, ऐसे करके हम मिक्स करते रहेंगे, सोल्यूशन बनता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप कॉपर सल्फेट डालेंगे भी तो भी मिक्स नहीं होगा, क्या होने लगेगा, नीचे कॉपर सल्फेट थोड़ा थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाएगा। तब ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर में, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है व्हेन नो मोर कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स, व्हेन नो मोर कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स। ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है, व्हेन नो मोर कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम थोड़ा हीट करेंगे, नीचे से बंसन बर्नर जो होता है लैब में। ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं बंसन बर्नर। हम बीकर को एक ऐसे बीकर को हमने एक स्टैंड के ऊपर रखा है, स्टैंड के ऊपर हमने एक वायर मैश यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, एक तार की जाली रखते हैं, डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, और बीकर को हमने रखा है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके भीतर, इसे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम जब हीट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम जब देखेंगे कि हमने चम्मच से फिर और कॉपर सल्फेट अगर इसमें डाला, ठीक है, और कॉपर सल्फेट थोड़ा थोड़ा डाला, कॉपर सल्फेट या सॉल्यूट हमने और डाला, और फिर उसे ग्लास रॉड स्टीर किया तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद और डाला, वो मिक्स हो जाएगा, फिर डाला, मिक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी हीट हो रहा है। पर थोड़ी देर बाद एक ऐसा समय आएगा कि आप हीट भी कर रहे हैं, मिक्स भी कर रहे हैं, तो भी और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए इस समय जो है यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एट 60 डिग्री सेल्सियस। हाँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एट 60 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोल देंगे कि 60 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसका मतलब जब आप हीट करेंगे तो आप थोड़ा और सॉल्यूट डाल सकते हैं, पर उसके बाद भी डालते डालते भी एक और स्टेज पे आके वो फिर से सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्वेंट पढ़ा, सोल्यूशन पढ़ा, सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी हमने पढ़ा। ये जो हायर टेम्परेचर पे होगा वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। Water as a solvent. Water is a very good solvent. It can dissolve a large number of substances in it. Therefore, it is called a universal solvent. However, some things do not dissolve in water and others only dissolve slightly.
they have different solubilities. The solubility of substance is a measure of how well it will dissolve in solvent. If it dissolves well, it has a high solubility. Substances that do not dissolve in water are called insoluble. Temperature and solubility. You have probably noticed that sugar dissolves more quickly in hot water than in cold water. This is true for most solvents and solutes. The warmer the solvent is, it is easier to dissolve the solute. Solute dissolves more easily in a warm solvent than in a cold solvent. The solubility of a substance in water increases on increasing the temperature. अब है वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि वाटर एक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। पानी एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैक्सिमम जो सॉलिड्स है कि दूसरे लिक्विड्स से वो आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। वाटर एक सॉल्वेंट के रूप में, एक बहुत अच्छे सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। मैक्सिमम थिंग्स गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। मैक्सिमम थिंग्स, मैक्सिमम सॉलिड्स और लिक्विड्स गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर so it is called a universal solvent। क्या कहते हैं वाटर को? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इज द मेजर, है ना, सॉल्युबिलिटी ये मेजर है कि कोई चीज़ कितनी आसानी से और कितनी आसानी से पानी में घुल पा रही है, वो मेजर है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ समथिंग इन वाटर है कि वो चीज़ पानी में कितनी अच्छे से घुल पा रही है। अगर पानी में वो अच्छी तरह से घुल पाएगी तो हमें उसे क्या कहेंगे? सॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कि सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होगा? सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट सॉल्युबल सब्सटेंस है। और जो चीज़ अच्छी तरह से नहीं मिक्स हो पाएंगे वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे ऑयल इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, चॉक पाउडर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो सब वाटर में वो मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब है कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का क्या नाता है? टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आप एक चम्मच चीनी ले, उसे ठंडे पानी में मिलाए, मिक्स करते जाए वो मिक्स करेगा। और आप एक चम्मच चीनी ले, उसे फिर गर्म पानी में मिलाए, आप देखेंगे कि गर्म पानी में वह जल्दी मिक्स हो गया और ठंडे पानी में उसे मिक्स होने में समय लगा। यानी टेम्परेचर जितना हाई होगा सॉल्युबिलिटी भी उतना हाई होगा, वो सब्सटेंस ईजिली सॉल्युबल हो जाएगा जितना टेम्परेचर हाई रहेगा। और ये भी है कि ठंडे पानी में मान लीजिए मैक्सिमम आप 3 चम्मच चीनी घुला पा रहे, एक ग्लास में मिक्स कर पा रहे, सॉल्युबल बना पा रहे, पर गर्म पानी में हो सकता है आप 5 चम्मच चीनी मिक्स कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब गर्म पानी होता है उसमें सॉल्युबिलिटी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें ज़्यादा सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे को बहुत इफेक्ट करते हैं। हायर द टेम्परेचर ग्रेटर इज सॉल्युबिलिटी, लोअर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्वेंट का टेम्परेचर जितना लो होगा सॉल्युबिलिटी उतना लो, सॉल्वेंट का टेम्परेचर जितना हाई सॉल्युबिलिटी उतना हाई रहेगा, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में इतना ही था। सॉल्युबिलिटी, सॉल्वेंट, आपने ये सब कुछ पढ़ा, है ना। सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसे आप सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करेंगे, इनसॉल्युबल सॉलिड को कैसे सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करेंगे, लिक्विड मिसिबल लिक्विड को और इमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से कैसे अलग किया जाएगा, ये सारे हमने पढ़े। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी हम लोग नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।